10 years ago, learning and development as a department was like a training department. Now it has come up to the strategic table. A strategy table has very limited seats. Not everybody is allowed to be there. If you are there and if the CEO today sees you as a hot weapon, that means we have reached that sweet spot. प्रोडक्ट लॉन्च किया था हमने. प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद बहुत डिफिकल्टीज थी. जब हमने एक्सटेंसिव फील्ड वर्क्स किए, वहाँ पर एक चीज निकल कर आई कि इस टीम ने ऐसा प्रोडक्ट पहले कभी हैंडल नहीं किया था. एंड दैट इज व्हेन वी रियलाइज्ड कि यार वी विल नीड टू ट्रेन अवर पीपल. एंड आई विल टेल यू दैट प्रोडक्ट क्रिएटेड हिस्ट्री. एक ऐसा प्रोडक्ट जो विड्रॉ होने वाला था वहाँ से हैड ग्रोन अराउंड 30%. एक है ना मिथ है, L&D प्रोग्राम का मतलब होता है फ्री चाय, फ्री समोसा. समोसा से शुरू हुआ था 10 साल पहले. टुडे इट हैज रीच्ड टू पिज्जा. एक एम्प्लॉय होता है. अब आज की तारीख में अगर अपस्किल की बात कर रहा हूँ या कुछ ऐसी बात कर रहा हूँ जिसको डिफरेंशिएटर के तौर पे यूज करते हैं, उस बंदे के पास वो स्किल नहीं है. कंपनीज फास्टर पेस में आगे बढ़ रही है. अब वो बंदा मेरे लिए इररिलेवेंट हो जाता है, और इररिलेवेंट बंदे का इस दुनिया में कोई जगह नहीं होता है. तो ये गलती किसकी है? They say people are your biggest asset, but if you're not upgrading them, you're not upscaling them, they are your biggest liability. Today, I am sitting with someone who is changing the game in learning and development. Pushkar Purohit, DGM L&D. We are going deep into how the right training can change your bottom line and why ignoring it can cost you everything. Welcome to Soul Talks with Bhavin. Let's dive in. आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, सो दैट हम आपके लिए और भी ज़्यादा इंसाइटफुल और इंटरेस्टिंग एपिसोड लाते रहे. एंजॉय द शो. वेलकम पुष्कर. दिस इज आवर सेकेंड पॉडकास्ट. दिस हैज़ बीन majorly the subject that I'm covering today is very close to your heart, and I know that this subject is not that evolved in the corporate world as it should be. But let's deep dive in. 10 years ago, learning and development as a department was like a training department. And now it has come up to the strategic table. According to you, what has changed? How it has become the hottest weapon for CEO? So I'll tell you what. 10 years ago, L&D was at the backstage, and all the action used to happen on the stage. Today, L&D has a function. It is just not on the stage, but it has reached a level where they are writing scripts also of the play. And this position uh, is earned by a lot of L&D professionals, I would say. Because a strategy table has very limited seats. Not everybody is allowed to be there. And if you are there, and if the CEO today sees you as a hot weapon, that means we have reached that sweet spot after a lot of hard work. All of us should feel proud about it, I think. So 10 years ago, क्या सिचुएशन था? जस्ट एक ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, जस्ट एक डिपार्टमेंट जो ट्रेनिंग करवाता था. क्या था? व्हाट वाज द सिनेरियो? नाउ दैट यू हैव टोल्ड अस, अब क्या सिचुएशन है? So 10 years ago, it was a good to have function in an organization. Okay, it was looked as a liability, cost center, to be very specific. And there were not many professionals. Okay, I'll tell you how training used to happen. Okay, in any organization, somebody who had been working for 20-25 years and was very near to his retirement, that particular individual would be parked in the training department, अच्छा. and he would be asked to train people if he was good at that. Okay. Worst part, it was also used as a punishment posting for sales professionals. Somebody who is not doing good,
then let us transfer him to the training department. अच्छा Because they didn't see value in that department. So उनको लगता था कि वहाँ तो रहेगा, इसको निकाल नहीं सकते because of obvious reasons. तो ठीक है, 2-5 साल करेंगे और उसके बाद he will retire from that. तो ये क्या ये जो इंडिविजुअल थे उनके पास वो स्किल सेट मास्टरी थी? हो सकता है और नहीं भी हो सकता. See, traditionally स्किल सेट या मास्टरी जो आप कह रहे हो, इसको हमेशा एसोसिएट किया गया है उम्र के साथ. ना, अगर आप उम्र में बड़े हो, आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो डेफिनेटली आपके पास स्किल सेट ज़्यादा होगा या मास्टरी होगी, ऐसा माना जाता रहा है ट्रेडिशनली. ओके. एंड ये दोनों तरफ से काम करता है, आपके लिए अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है. अगर आप उम्र दराज हो तो अच्छा है, बट अगर आप यंगस्टर हो और आप एल में आना चाहते हो, तो लोग आपको सीरियसली नहीं लेते. इंटरेस्टिंग. एक है ना मिथ है जो मैंने ऑब्जर्व किया है एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये है एंड वी हैव टू बी ऑनेस्ट रिगार्डिंग दिस. ट्रेनिंग या एल&डी प्रोग्राम का मतलब होता है फ्री चाय, फ्री समोसा, कुछ घंटे ऑफिस से बाहर रहने का या अपने Yes. काम से बाहर रहने का मौका मिलता है. हैव यू फेस सच माइंडसेट? पेड वेकेशन हाँ. डेफिनेटली. समोसा से शुरू हुआ था 10 साल पहले. टुडे इट हैज रीच टू पिज्जा. हम्म, ओके. डेफिनेटली आई हैव सीन पीपल कॉलिंग आउट एंड आस्किंग कि सर लंच होगा या नहीं, हम्म, या अगर मॉर्निंग का सेशन है तो ब्रेकफास्ट रखा है या नहीं रखा है, देन क्या है. एंड इट हैपेंस, मतलब यू हैव टू लिव विथ इट. तो ऐसी कोई वाकया आपके साथ हुआ है जहाँ पे लाइव ट्रेनिंग आपने या एक सेशन प्रोग्राम प्लान किया है, पीपल आर मोर क्यूरियस अबाउट कि नाश्ते में क्या है? देखो, क्यूरियोसिटी तो होती है यार. कभी नाश्ते की बात होती है, खाने की बात होती है, या तो फिर लोकेशन की बात होती है. समटाइम्स यू ट्रेन पीपल ऑन एक्सोटिक लोकेशंस, तो लोगों को शाम के साइट सीइंग का जो प्लान है वो बनते रहता है हम्म, सेशंस में. एंड अल्टीमेटली व्हाट आई बिलीव इज कि यू कैन नॉट टीच अ पर्सन अनटिल अनलेस ही वांट्स टू लर्न. हम्म, तो ये जो चैलेंजेस है, जो आप कह रहे हो कि सेशंस से ज़्यादा नाश्ते पर, खाने पर या वेन्यूज पर लोगों का ध्यान है, तो ये कॉन्टेक्स्ट सेटिंग से होता है. तो सेशन इज नॉट इन अ 8 to 10 ट्रेनिंग सेशन. द सेशन इज नॉट फॉर 2 hours. इट स्टार्ट्स राइट फ्रॉम द टाइम जब आपने इनविटेशन भेजा. तो अगर आपका वो प्रोसेस सही है, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस कम मिलेंगे. यस. और जब व्हाट आई डू इज, हर ट्रेनिंग सेशन के पहले मैं लोगों को एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि खाना फ्री है, बट पेट आपका है. एंड इट हैज वर्कड फॉर मी. सो ऐसे माइंडसेट को, जैसे आप कुछ चीज़ें बता रहे थे, तो ऐसी माइंडसेट को हम स्विच कैसे कर सकते हैं, फ्लिप कैसे कर सकते हैं, वेर इन पीपल सी ट्रेनिंग एज एन इन्वेस्टमेंट टू देम एंड नॉट एज अ टाइम पास? सो जैसे मैंने आपको कहा कि एक ट्रेनिंग शुरू होता है सिर्फ उस 2 घंटे के सेशन में नहीं, बल्कि वो नीड कहाँ से आया. लॉट ऑफ टाइम्स आई विल टेल यू, कुछ करना है, एम्प्लॉयज़ को एंगेज रखना है. ओके. हाँ, तो एक ट्रेनिंग सेशन करवा देते हैं यार, तो मेरे बंदे एंगेज रहेंगे, कुछ हम उनके डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं, ये फीलर्स उनको मिलते रहेंगे. तो अगर उस माइंडसेट से वो ट्रेनिंग सेशन शेड्यूल किया गया है, तो डेफिनेटली वहाँ पर लोगों का ध्यान खुद के डेवलपमेंट में नहीं होगा, बिकॉज उनको शायद उस ट्रेनिंग की ज़रूरत भी नहीं थी. हम्म, सो अगर आप ट्रेनिंग को देखोगे तो इट इज़
अ 4 स्टेज, ब्रॉडली आप उसको 4 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हो। द पहला स्टेज है ट्रेनिंग नीड एनालिसिस, कि किस बंदे को किस ट्रेनिंग की ज़रूरत है, वो First, एनालिसिस किया है क्या? हुँ। मेरी टीम में हो सकता है 20 लोग हैं, तो और मैं एक एक्सेल वर्कशॉप की ट्रेनिंग कर रहा हूँ, और ज़रूरी नहीं है मुझे सारे 20 लोगों को बुलाना है। 20 में से कितने लोग हैं जिन्हें एक्चुअल एक्सेल ट्रेनिंग की ज़रूरत है? अदरवाइज़ क्या हो सकता है, कोई एक्सपर्ट है एक्सेल में एंड अगर उसे मैंने उस ट्रेनिंग में बुला लिया, तो उसे तो जो मैं सिखाने वाला हूँ वो आता है, वो डिसरप्ट करेगा, इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। वो इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा एंड दैट बिहेवियर विल मल्टीप्लाई। क्लासरूम्स में हमेशा फेवरेट्स बैक बेंचर्स ही होते हैं। हाँ। है, तो दूसरे बच्चे उस बैक बेंचर्स को ही अपना इंस्पिरेशन लेते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, तो अगर आपने एनालिसिस सही किया है, सेकंड आपका कंटेंट रेलेवेंट है या नहीं, फॉर द वर्क ऑफ दैट पर्सन, ओके, जो वो काम कर रहा है उसके करंट जॉब प्रोफाइल के लिए सही है या नहीं। थर्ड इज द डिलीवरी, आप सेशंस में क्या कर रहे हैं, एंड लास्टली इज द एनालिसिस। तो अगर आप ये 4 स्टेप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली लोगों को जब उनकी ट्रेनिंग नीड्स निकल कर आएगी और उस पर ट्रेन किया जाएगा, तो हु डज नॉट वांट टू लर्न। एक है ना सीरियस टॉपिक पे आता है, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। लॉट ऑफ सीईओज टॉक अबाउट रेवेन्यू, पैसा, Yes. मतलब दैट इज द बिगेस्ट थिंग इन अक्रॉस इंडस्ट्री। अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट वाज दैट ट्रेनिंग प्रोग्राम जो आपने डिजाइन किया था, या यू वर द पार्ट ऑफ इट, कि जिससे आपके डायरेक्ट बॉटम लाइन पे इम्पैक्ट हुआ, एंड यू वर लाइक वाओ, इसके होने के बाद सिचुएशन चेंज्ड एंड देयर वाज एक्स रिजल्ट। Ideally, I work for a corporate organization. Okay, and so corporates में ना भाविक, I will tell you कि companies don't invest money if they don't see bottom line getting impact. हाँ, तो सभी प्रोग्राम्स में more or less ROI तो होता ही है, they get their returns. But if you ask to me कि list down करना है and the best one according to me, so there was this एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था हमने, एंड प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद बहुत डिफिकल्टीज थी। पीपल वर नॉट पिकिंग अप द प्रोडक्ट, मार्केट प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। एक ऐसी नौबत आ गई कि यार हमने सही किया है या गलत किया है ये प्रोडक्ट लॉन्च करके। एंड शॉकिंग चीज़ ये थी कि दूसरी कंपनीज में सेम प्रोडक्ट अच्छे कर रहा है, सेम मॉलिक्यूल अच्छा कर रहा है। हाँ। ओके, सो दैट मीन्स मार्केट एक्सेप्टेंस था। हाँ। एंड दैट इज व्हेन वी वेंट बैक, तो हमने समझने की कोशिश की कि क्या हो रहा है, व्हाट इज दैट प्रॉब्लम। हमने एक्सटेंसिव फील्ड वर्क वगैरह किया लोगों के साथ। ओके, एंड वो सिचुएशन थी कि प्रोडक्ट को अब विड्रॉ करना है, बट एक लास्ट चांस देकर देखते हैं लोगों को, अपनी टीम को और प्रोडक्ट को। तो जब हमने एक्सटेंसिव फील्ड वर्क्स किए, जाकर देखा, मार्केट में समझा, तो वहाँ पर एक चीज़ निकल कर आई कि इस टीम ने ऐसा प्रोडक्ट पहले कभी हैंडल नहीं किया था। तो उनको कुछ नहीं पता था उस प्रोडक्ट के बारे में, उसके मार्केट के बारे में, एंड वो हमेशा वापस आकर यही कहते थे कि इसका तो मार्केट ही नहीं है। And when you're saying team and the product, you're talking about the sales functionality which is on the ground. ऑन द ग्राउंड, द सेल्स टीम, द रेप्स, The rep. द सेल्स रेप्स। And you're talking about pharma as an industry. It was it was in the pharma industry, but the product was not pharma. मतलब प्योर प्रिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट नहीं था, सो इट वाज एन ओटीसी काइंड ऑफ अ ब्रांड। अच्छा। तो इनको हमेशा लगता था कि यार हमने तो हमेशा डॉक्टर पे प्रोडक्ट बेचा हुआ है, हाँ। बट ये प्रोडक्ट डॉक्टर्स पे जाकर पूछते थे, डॉक्टर्स बोलते थे हम तो लिखते नहीं, हाँ। तो इसका पोटेंशियल ही नहीं है। हाँ। एंड दैट इज व्हेन वी रियलाइज्ड कि यार
वी विल नीड टू ट्रेन अवर पीपल हम्म कि वो रिटेलर्स पर जाकर बात करना शुरू करें. हम्म एंड आई विल टेल यू दैट प्रोडक्ट क्रिएटेड हिस्ट्री. मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट जो विड्रॉ होने वाला था, वहां से इन दी 45-50 days, बिकॉज हमने एक पूरा साइकिल बनाया था. 45-50 days के बाद व्हेन वी एनालाइज्ड, वेंट बैक एंड एनालाइज, सो सेम प्रोडक्ट हैड ग्रोन अराउंड 30%. सो यू आर सेइंग कि जो प्रोडक्ट बंद होने वाला था, यस. जिसका लाइफ एक्सपायरी लाइफ बहुत ज्यादा थी, यस. वो 30% ग्रो कर गया ग्रोथ विदाउट इवन, मतलब इतना हैसल. 30% ग्रोथ करना इन 45 days, यस. एंड दैट इज, दिस इज ट्रू ऑन द ग्राउंड, This is true on the ground. The product is still there in the market. स्टिल It- सर्वाइविंग. It is still surviving and it is doing good. And that, forget about the product and the business numbers, but it gave a huge boost to the sales team. Yeah, because 30% in 45 days, the result is insane. Yes. And that is what I told you, that if you do the right, so I will say that the magic did not happen in the training session. In this case, the magic happened before the training sessions. When we were there observing our field people, कि यार, where is that gap? So we identified the gap rightly. And आपने राइट प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया तो आपने राइट सॉल्यूशन दी. सो एक एक फियर फैक्टर ट्रेंड चल रहा है अभी मार्केट में, एंड ये लार्जली कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ. जो आपकी स्किल्स है वो इतनी जल्दी एक्सपायर हो रही है जितना जल्दी आपका मोबाइल फ़ोन का अपडेट नहीं होता है. सो फॉर एन एग्जांपल, हम ये मान के चलते हैं कि 2 या 3 सालों के अंदर आपके जो रोल्स हैं, कुछ रोल्स वो वैनिश हो जाएंगे. एंड अगर आप उस दौरान अपस्किल नहीं करते हो, यू डोंट अपस्किल योरसेल्फ, आर यू पुटिंग योर करियर ऑन रिस्क? डेफिनेटली. बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस, मुझे आपका एनालॉजी अच्छा लगा, जो आप कह रहे हो कि मोबाइल अपडेट से फास्ट पीपल आर लूजिंग देयर स्किल्स या द स्किल्स आर बिकमिंग इररिलेवेंट. बिल्कुल सही बात है. अगर आप अपस्किल नहीं करते हो तो क्या खोते हो? आप नहीं कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में कोई तो कर रहा है. हम्म सो यू आर नॉट डूइंग डज नॉट मीन नोबडी इज डूइंग. हम्म So even in this world today, even if you are standing at one place, then also in a way you are moving backwards. हम्म Okay. And skills का भी सेम है. डेफिनेटली ये टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारे जॉब्स नहीं होंगे शायद अगले कुछ सालों में, बट इसको मैं क्या एक डर की तरह देखूं हम्म या इसको मैं एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखूं? जस्ट बिकॉज तलवारें बंद हो गई हम्म तो लड़ाइयां तो नहीं रुक गई. हम्म गन्स आए, टैंक्स आए, हम्म आपके ड्रोन्स आए, हम्म लेटेस्ट हम्म चल रहा. हम्म सो दैट इज दैट एनालॉजी दैट आई वांट टू ड्रॉ कि जस्ट बिकॉज सम जॉब्स प्रोफाइल्स विल वैनिश डज नॉट मीन कि वो काम नहीं होगा. हम्म तरीका बदल जाएगा. and hence you have to upskill yourself यस. in a different way altogether. यस. आप आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है. आप अपने घर घर की लेडीज को देखिए. हम्म चूल्हे पर खाना बनाना शुरू किया हमने. हम्म जब चूल्हे बंद हो गए, गैस आ गए, हम्म ओवेन्स आ गए, हम्म तो खाना बनाना तो नहीं रुका. हम्म तरीका चेंज हो गया. हम्म लोगों ने अपस्किल किया. हम्म दैट्स इट. क्या एक अनदर एग्जाम्पल ऑफ अपस्किलिंग जो आज के ऑडियंस को आप देना चाहते हो इन अ रिलेटेबल मैनर, व्हाट वुड दैट बी? सो आई विल नॉट नेम एन म्यूजिशियन ऑब्वियसली, बट अगर आप देखोगे पहले ऑर्केस्ट्रास होते थे, हम्म तो सो म्यूजिशियंस बैठे हुए हैं, कोई तबला बजा रहा है, कोई गिटार बजा रहा है, एंड ऑल दिस. हम्म
there was this one gentleman who understood that this is a very costly affair. इतने लोगों को एक जगह एक साथ में लाना and all, do this. And he started investing in music, sound music, technology. Okay. And लोगों ने सोचा नहीं हो पाएगा यार, कभी नहीं होगा, क्या करेंगे. But today he is a very famous name. और अकेले ही कर लेते हैं. So it is cost effective also. And you also have to live with the world. You cannot always rely on the old ways. You have to find better ways to do things and refine your ways. It will improve your skills. Upskilling से ज़्यादा अब आई थिंक हमको रीस्किलिंग की तरफ भी बात करना चाहिए, बिकॉज वी आर गोइंग थ्रू अ ह्यूज ट्रांजिशन. What is reskilling? So upskilling means I was using Windows 95, Windows 98 आया, Windows 2000 आया, 2003 आया, तो मैं सेम सिस्टम पे अपनी अपस्किल कर रहा हूँ अपने आप को. बट टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट जनरेटिव एआई, जो 10 साल पहले कहीं था ही नहीं. Correct. तो आई विल हैव टू लीव एवरीथिंग ऑफ विंडोज and I have to come to a new platform to learn about it. So I will have to enter that new platform as a new learner. That is reskilling. मुझे फिर से शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा. And that is more important. That Correct. will give you confidence. See, fear, how do you treat fear? The only way to treat fear is to have knowledge. So that you become more complacent, more confident about yourself. Yes. जब आप confident होते हो तब आप डरते नहीं हो. You deliver lot of things. And confidence कहाँ से आता है? आपके knowledge से. अगर मुझे पता है कि मैं आपके साथ हूँ and I am safe, so that knowledge gives me confidence to be with you. If we are strangers and I don't know you, then I don't have knowledge about you. That gives me fear if you call me to meet. So that time I will be fearful. I don't know whom am I going to meet. So, fear can be a motivating factor. It is how you take it. मैंने ना कहीं पढ़ा था कि लॉट ऑफ जब हम ये सारी बातें कर रहे हैं, थिंग्स आर इवॉल्विंग, लॉट ऑफ सीईओज है ना, कैसे होता था कि इसको तवज्जो ही नहीं देते थे. ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होता था एक कंपनी में इसको ट्रेनिंग को. तो अब जब आप इतनी सारी चीज़ें बात कर रहे हो, उससे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कॉन्फिडेंस भी आता है कि ट्रेनिंग एज अ सब्जेक्ट इज सो इम्पोर्टेंट. जब आप अपस्किलिंग की बात करते हो, जब आप रीस्किलिंग की बात करते हो. एंड एक इंस्टेंस ऐसा है विच आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू एंड द ऑडियंसेस कि and I would like to know your suggestion also or your viewpoint also in this कि जब एक एम्प्लॉई होता है वो अपने स्टैचुरेशन पॉइंट पे आ जाता है. मैंने इज देयर इन द सिस्टम फॉर 2 or 3 years with whatever skill set he is having, basic knowledge of things to perform his duty. अब आज की तारीख में अगर मैं अपस्किल की बात कर रहा हूँ या कुछ ऐसी बात कर रहा हूँ जिसको डिफरेंशिएटर के तौर पे यूज़ करते हैं, उस बंदे के पास वो स्किल नहीं है, कंपनीज फास्टर पेस में आगे बढ़ रही है, अब वो बंदा मेरे लिए इर्रिलेवेंट हो जाता है और इर्रिलेवेंट बंदे का इस दुनिया में कोई जगह नहीं होता है. तो ये गलती किसकी है? ये गलती क्या कंपनी के मैनेजर्स की होती है जो उसके सिखाने में, उसको आगे बढ़ने में मदद नहीं कर रहे, या ये एज अ कल्चर बिल्ड नहीं हुआ है, या थर्डली वो बंदे का ही गलती है कि उसे भी कंफर्ट जोन में रहना है. सो जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो ना भाई, ये बहुत इमोशनल क्वेश्चन है कि एक बंदे का जॉब टुडे इट इज 1/3 ऑफ हिज लाइफ, है ना, और हम उसका 1/3 से ज्यादा ही होगा. द टाइम दैट ही स्पेंडिंग ऑन जॉब.
तो क्या अपस्किल नहीं कर पाया तो उस बंदे के ऊपर ऑर्गेनाइजेशंस ने कॉल लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? Yeah. So definitely, there are organizations Hmm. who don't invest in their people. Hmm. Okay, but they face it. They उनकी नसीब या उनका किस्मत वो खुद लिख रहे हैं. Okay. At the same time, there are organizations who invest a lot in their people, in their upskilling of their people. Employees don't take it seriously. जो आप चाय समोसे की बात कर रहे हैं, तो वो चाय समोसा करियर के उस स्टेज पे बहुत महंगा लगता है जब आपने अपस्किल नहीं किया. अभी रिसेंटली आपने पढ़े होंगे न्यूज चैनल्स में वगैरह थे, तो कंपनीज आर लेइंग ऑफ पीपल. ओके, क्यों कर रहे हैं? मिडिल मैनेजमेंट से लोगों को ले ऑफ कर रहे हैं, यंग पीपल को रख रहे हैं, बिकॉज दिस पीपल वर नॉट पिकिंग अप न्यू टेक्नोलॉजीज. Correct. ओके, what I would say is learning does not happen individually. पूरा एनवायरनमेंट बनता है. ऑर्गेनाइजेशन ने एडवांस में फ्यूचर नीड्स समझनी बहुत ज़रूरी है. Correct. एज एन इंडिविजुअल मैं नहीं समझ पाऊंगा कि मुझे 5 साल के बाद कौन सी स्किल्स लगेगी. सो आई वांट माय ऑर्गेनाइजेशन टू कीप दैट इन व्यू एंड मुझे उसके लिए तैयार करें. बट क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल की भी तो होनी चाहिए ना कि अ, जैसे मेरे साथ में लोग आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, मैं नहीं बढ़ पा रहा हूँ, आई एम स्टैग्नेंट एट वन स्टेज एंड आई एम एंजॉइंग दैट लाइफ, तो वो कब तक एंजॉय कर पाएगा? वेरी ट्रू. दैट इज द क्वेश्चन दैट यू नीड टू आस्क हाँ, yourself हाँ, every 8 months, 9 months. हाँ, So you need to have your own report card, I would say. हम ऑर्गेनाइजेशंस में बात करते हैं पीएमएस की. हाँ, आपको खुद का पीएमएस करना चाहिए एवरी ईयर. हाँ, वेयर वाज आई लास्ट ईयर? अभी कहाँ हूँ, कहाँ जा रहा हूँ? हाँ, एंड इफ यू कैन डू दैट फॉर योरसेल्फ, ग्रेट. बिकॉज आई विल टेल यू वन थिंग, अगर आप ग्रो करना चाहते हो, अगर आप अपस्किल करना चाहते हो, अपने आप को डेवलप करना चाहते हो सकता है इस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं कर पाओ, बट इंडस्ट्री में बाहर आपको वैसी ऑर्गेनाइजेशंस मिलेगी जो लोगों में इन्वेस्ट करना चाहती है, अपने लोगों को डेवलप करना चाहती है. ऐसा नहीं है कि ऐसी है ही नहीं ऑर्गेनाइजेशन. बट बट देन अगेन, यू कैन ओनली टेक अ हॉर्स टू अ स्प्रिंग. पीना या नहीं पीना तो उसका काम है ना. मैंने ना एक एग्जाम्पल देखा है एंड आई हैव ऑब्जर्व्ड इट वेरी वेल कि एक ऑर्गेनाइजेशन में आपने बहुत समय तक टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे, ठीक है, स्किल अपग्रेड हो रही है, लोग नई स्किल सीख रहे हैं, लर्निंग एंड डेवलपमेंट पूरा एफर्ट डाल रहा है, प्रोडक्ट नॉलेज भी है, इट्स जस्ट नॉट कन्वर्टिंग. तो उस सिचुएशन में क्या होना चाहिए? वन इज दैट कंसिस्टेंसी टूवर्ड्स योर बेसिक, और is there something that learning and development can nudge more to get things delivered? सो अगर आप कह रहे हो कि लर्निंग एंड डेवलपमेंट अपना काम कर रहा है एंड उसके बाद भी इफ इट इज नॉट टर्निंग आउट, सो अंडरस्टैंड वन थिंग, वी ऑल हैव टू एग्री दैट ऑर्गेनाइजेशंस नीड टू सर्वाइव. और उनके सर्वाइवल के लिए रेवेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर मैं अपस्किल कर रहा हूँ बट मेरे लोग रेवेन्यू ही नहीं जनरेट कर पा रहे, तो मे बी ये ट्रेनिंग का प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरे स्ट्रक्चर या मेरे मॉडल, मेरे बिजनेस मॉडल में कुछ इशू है. तो दैट इज अनदर क्वेश्चन, उसके बारे में हम कभी और बात कर सकते हैं इन डीप. Correct. चीज हो जाएगी पूरी. ये स्पेशली मैं तब कह रहा हूँ जब आपने बोला कि ट्रेनिंग टीम अपना काम कर रही है, उसके बाद भी अगर नहीं हो, नहीं हो हर नॉन परफॉर्मेंस का सॉल्यूशन ट्रेनिंग नहीं हो सकता. करेक्ट, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि हर चीज का सॉल्यूशन ट्रेनिंग हो भी नहीं सकता है और नहीं भी हो सकता है. देयर आर टू वेज हाउ वी लुक एट ट्रेनिंग एंड
लर्निंग एंड डेवलपमेंट एज अ डिपार्टमेंट ऑल टुगेदर. सो जब हम एआई की बात कर रहे हैं एंड जब फियर फैक्टर की जो हमने अभी बात की, तो एआईज अब आ चुके हैं, चैट जीपीटी है, स्टिमुलेशंस हैं. तो एक एक थॉट माइंड में ये भी है कि क्या एक एलएनडी प्रोफेशनल का जॉब एक रोबोट रिप्लेस कर सकता है क्या? नाइस क्वेश्चन. आई टेल यू, अभी मैं कुछ दिन पहले ट्रैवल कर रहा था और कॉलेज के बच्चे आपस में बातें कर रहे थे, तो आई जस्ट ओवरहर्ड देम. एक ने अपने फ्रेंड से पूछा कि हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, तू अपने दिल की वगैरह सारी बात किसके साथ शेयर करती है? हाँ, एंड शी सेड चैट जीपीटी के साथ. एक्चुअली में ऐसा बात हो. यस, एक्चुअली में, कि मैं मुझे कुछ भी पूछना होता है, मुझे कुछ भी शेयर करना है, मैं तो चैट जीपीटी पे मैं डाल देती हूँ, वो मुझसे बातें करता है. ओके, एंड ये हो रहा है जब हम यहाँ पर पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये हो रहा है. ओके, नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन कि क्या एक ट्रेनिंग मैनेजर का जॉब, कल को कोई रोबोट एज अ ट्रेनिंग मैनेजर दिख सकता है? हाँ, यस, दिख सकता है. आज रोबोट्स ट्रेन कर रहे हैं हम्म, और रोबोट्स रोबोट्स को भी ट्रेन करेंगे. तो बट क्या एक एलएनडी प्रोफेशनल का जॉब एक रोबोट ले सकता है, रिप्लेस कर सकता है? तो आई वुड से नो, हम्म, बिकॉज एक एलएनडी प्रोफेशनल का जॉब सिर्फ ट्रेनिंग डिलीवरी नहीं है. टेक्निकल स्किल्स रोबोट कैन एक्सप्लेन. फॉर एग्जांपल, मुझे कार असेंबली करना है, हम्म, तो दैट वन रोबोट कैन टीच टू अनदर रोबोट हम्म, and they can then do things. Okay, but that human touch, हम्म, sales people ko robot can train? I would say no, because sales people are going to go and deal with real humans, हम्म, and real humans can be weird. हम्म, उनको प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड सिचुएशंस आप कितनी भी फ्रेम कर लो हम्म. प्रैक्टिस के लिए, बट जब जब आप ग्राउंड पर जाओगे, तो आपने जो सिचुएशंस सिखाई होगी उसके अलावा कुछ सिचुएशंस होगी. डिफरेंट सिनेरियोस. यस, फॉर एग्जांपल रेजिलियंस. हाँ, कस्टमर कॉल देने के बाद क्या बोलना है, ये एक रोबोट सिखा सकता है किसी को भी, हाँ, बट वो टाइम ही नहीं दे रहा है, हाँ. तो मुझे टाइम कैसे लेना है, ये तो आप नहीं सिखा सकते. तो है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा हमारा एक डिस्कशन हो रहा था हमारे फ्रेंड सर्कल में. एंड जब ये टॉपिक निकला था एआई स्टिमुलेशन वगैरह, जॉब्स जा रहे हैं वगैरह, बहुत इंटरेस्टिंग सा एक टॉपिक आया था. उसमें एक फ्रेंड का एक ऑब्जर्वेशन था, जो बहुत ही करेक्ट ऑब्जर्वेशन है, कि एआई इज जस्ट अ बेबी नाउ. इट इज इवॉल्विंग, इट इज लर्निंग व्हाट यू आर डूइंग, इट इज ऑब्जर्विंग द थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन डे टू डे लाइफ. मेरा क्वेश्चन वो पॉइंट ऑफ व्यू से था कि अगर इस अर्ली स्टेज में इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है एआई का, वेरिन यू जस्ट सेड कि लोग अब फिजिकल फ्रेंड नहीं, ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं, दे आर एक्चुअली कीपिंग एआई एज अ फ्रेंड, एंड विच इज लाइक व्हाट. तो आने वाले सालों में क्या एक डिलीवरी पॉइंट ऑफ व्यू से एक रोबोट, क्या एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ह्यूमन एंगल को लेके क्या डिलीवर कर सकता है क्या? यस, टेक्निकल स्किल्स में यस, एनी टाइम, आज भी कर रहे होंगे कहीं पर, आगे भी कर सकते हैं जाकर. बट जो बिहेवियरल ट्रेनिंग्स है, वहाँ पर रोबोट्स नहीं रिप्लेस कर पाएंगे ह्यूमंस को. और एआई भी, so today we are scared of AI because we don't have knowledge about AI. Okay. So I would request anyone who is scared कि AI मेरा job ले लेगा, I would request them to get themselves updated about AI, हाँ, get AI literacy. हाँ, Okay. तो जितना आप ज़्यादा जानोगे AI के बारे में, तब आपको पता चलेगा कि ये एक टूल है, एंड इट इट कैन नेवर, इसके पहले भी. ओके, द बिगेस्ट इवोल्यूशन हाँ, in the world has been the discovery of light. हाँ. Okay, but did that stop people from selling candles? No. So you will have to see that, and it is good, it will push you, it will give more. I always keep on telling कि अगर एक AI मेरा डिलीवरी पार्ट ले लेता है,
दैट इज गुड। मेरे पास ट्रेनिंग नीड एनालिसिस करने के लिए ज़्यादा टाइम रहेगा। मेरे पास ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए ज़्यादा टाइम रहेगा। मुझे इस क्लासरूम में सेशन लेने के लिए कोई एआई ले रहा है या रोबोट ले रहा है, विच इज़ गुड, इट विल हेल्प मी। तो जैसे आप बोल रहे हो ना, ये मिथ को अ, हटाना बहुत ज़रूरी है। जैसे एआई कैन ऑलवेज बी अ पार्टनर इन डूइंग थिंग्स। यस, You should not be scared. Obviously, there are, if you're not upscaling, obviously, you're not learning anymore. तो आपको स्केयर होना पड़ेगा इस फास्ट ट्रेंडिंग सिचुएशन में या चेंजिंग वर्ल्ड में, बट देन इट इज जस्ट अ हेल्पिंग टूल। जस्ट एक एक थोड़ा ऑफ टॉपिक होते हैं, ये मेरा क्यूरियोसिटी था ये क्वेश्चन, एंड आपसे बेहतर इस बारे में मेरे को कोई बता नहीं पाएगा। जब हम एआई पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं या हम ज़्यादा टैग सेवी एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, एंड एवरीथिंग फॉर एवरीथिंग वी आर ओपनिंग अ एआई एंड डूइंग आवर वर्क, तो अपना थिंकिंग करने का जो कैपेसिटी है, क्या वो कम हो रहा है? यस, डेफिनेटली। सी, आई विल टेल यू, न्यूरोसाइंस में भी इट हैज़ बीन प्रूव्ड कि आवर ब्रेन के जो न्यूरॉन्स है, if you don't use them, if you don't push them to the limits, then they die, and that is real fact. Correct. Okay, तो अगर आप नहीं पुश करोगे over a period of time, they will lose that track and uh, they will die. Okay. Uh, and then it will become very difficult for you to again regenerate those thinking paths in your brain. So now it is up to us, how much do we want to stop thinking. Do L&D professional now basically design course based on their experience, या वो एआई का मदद लेके अभी थोड़ा शॉर्टकट वे में काम करना शुरू करते? If they are using it as a tool, very good, I would say, अगर आपका टाइम बचा सकता है, okay, but you will have to decide and create that line कि कितना काम आप उससे करवाना चाहते हो. Okay, your TNA should not come from AI. What is TNA? Training need analysis should not come from AI. आपका डिलीवरी स्टाइल, ओके, डिलीवरी मेथड्स, मे बी दैट कैन कम फ्रॉम एआई. यू सो ऑडियंस में से अगर किसी को पता नहीं है ट्रेनिंग नीड एनालिसिस क्या होता है, व्हाट इज दैट? ट्रेनिंग नीड एनालिसिस इज बेसिकली एन एनालिसिस, इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ किस चीज की ट्रेनिंग देनी है इस बंदे को, क्या गैप है इसमें. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कल कोई कहे कि यू नीड टू ट्रेन ड्राइवर्स, आपने देखा होगा मोटर ट्रेनिंग स्कूल्स में, देयर इज दिस वन पर्सन हु इज सिटिंग बिसाइड, और वो ऑब्जर्व कर रहा है आपको, तो वो फिर वो आपको फीडबैक देता है कि यार, आप क्लच बहुत जल्दी छोड़ रहे हो, या आप रेस ज़्यादा दे रहे हो. बेसिकली जब वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है, वो एक तरह से आपका ट्रेनिंग नीड एनालिसिस ही कर रहा है कि मुझे इसको किस पे ट्रेन करना है. करेक्ट. आप लेफ्ट मारते वक्त बहुत ज़्यादा लेफ्ट में चले जा रहे हो. दैट इज इट फॉर द लेमैन हु इज लिसनिंग टू दिस. सो पुष्कर, लेट्स टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, ऑफिस पॉलिटिक्स. हाँ, सो I usually keep myself away from political talks, but office politics, Yes. we can. कॉर्पोरेट नॉर्मल लाइफ, तो पॉलिटिक्स It's was a part of Yes. your corporate journey. तो मान लो एक सेल्स हेड would say कि we don't have time for training or any learning and development program. We are busy in chasing a target and that is our priority. You say कि if you don't attend the program, you don't know about things, you won't hit your target. तो ऐसे जब चीज़ें होती हैं, who usually wins such battle, and how do you make them understand, make them listen to whatever you are saying? So I should appreciate you for doing your homework very well. Definitely, होता है. Especially जब आप
नंबर्स चेस कर रहे हैं, देयर आर स्ट्रिक्ट बजट्स, ओके, तो ये क्लैशेस होते हैं. बट देन आई वुड से, इफ यू आस्क मी पर्सनली हाउ डू आई हैंडल, so what my experience has taught me is, it is not a competition. See, understand one thing, a CEO definitely has his budget. Hmm. He does not have unlimited resource of money to run the business. And now, as a function head, it is up to you कि आप उसमें से कितना अपना शेयर ले सकते हो. Hmm. Okay. But the ultimate goal is the same. It Hmm. should, the organization should run profitably. Hmm. Okay. Sales people, they bring sales. How I talk to them? I talk to them in their language because they only understand sales. So I will just give one example that I always give to whenever I face this kind of a question. I always give that not investing in your people is like you are running an F1 race and you don't want to take a pit stop break. Hmm. You want to cover the laps. तो कितने लैप्स कर पाओगे अगर आप पिट स्टॉप ब्रेक नहीं लोगे? अगर आप पिट स्टॉप ब्रेक को एज अ लायबिलिटी देख रहे हो Hmm. कि यार मेरे तो कुछ टाइम यहाँ वेस्ट हो रहा है, Hmm. तो देन वुड यू बी एबल टू कंप्लीट योर लैप्स? Hmm. इफ यू थिंक आप कर सकते हो, डेफिनेटली गो अहेड. एंड ये एक आपके जो आपने जो एग्जांपल दिया उस पे से ये भी है कि आप पिट स्टॉप इसलिए भी लेते हो वेरिन आप अपने रिसोर्सेस को जो आपके टायर्स है आपके बाकी के पार्ट्स है जो आपकी गाड़ी के हैं F1 रेस की जब बात है उसको आप अच्छे से बेहतर कर रहे हो यू आर रिप्लेसिंग इट यू आर अपग्रेडिंग इट सो दैट वो लॉन्ग रन चले यस. एंड इफ यू आर नॉट डूइंग दैट देन शायद आपकी गाड़ी बीच में ही रुक जाएगी तो आप रेस कंप्लीट नहीं कर पाओ. तो रेस तो वैसे ही हार जाओगे. तो अगर आप नंबर्स चेस कर रहे हो और अगर आप हासिल करना चाहते हो, तो ये जो पिट स्टॉप है ट्रेनिंग नाम का, ये लेना बहुत जरूरी है. सी, आई टेल यू, आप अगर आप उनको बिजनेस इम्पैक्ट बताओगे ना हम्म. कि मैं आप ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको इतना परसेंटेज हाइक दे सकता है सेल्स में हम्म. विद द सेम फील्ड फोर्स, हम्म. तो देन यू आर नॉट अ कॉस्ट सेंटर. हम्म. दोनों का काम सेम है. सेल्स पीपल का काम है टॉप लाइन को हिट करना, और अगर हम उनका बॉटम लाइन बेटर करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबिलिटी में आता ही है. तो यू बेसिकली समराइज इट बाय सेइंग कि आप सेम लैंग्वेज में बात करते हो व्हिच वर्क्स उनके साथ दे विल नॉट अंडरस्टैंड ट्रेनिंग नीड एनालिसिस एंड ऑल. वो समझते हैं ये प्रोग्राम से मेरी कितनी हेल्प होने वाली है, मेरा सेल्स कितना बढ़ने वाला now you have done lot of you have designed lot of training and development programs for your staff in your career and इसमें से कौन सा ऐसा ट्रेल लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम था जो बहुत टफेस्ट था आपकी लाइफ में जिसमें आपने बहुत अपनी एनर्जीज डाल दी थी रिसोर्सेज डाल दिए थे योर एवरीथिंग योर योर ब्रेन आइडियाज एवरीथिंग एंड आपको जब वो इनिशिएट करना था यू फेल्ट कि यार ये नहीं ये फेलियर की तरफ जाएगा आई डोंट फील कॉन्फिडेंट अबाउट इट एंड to the adverse effect, it turned out to be your biggest win. है. वन सच, इट वाज नॉट वन ट्रेनिंग प्रोग्राम, it was basically a complete intervention, if I remember it. So what happened is, uh, one of my organization in which I was working, उन्होंने एक दिन डिसाइड किया कि हमको एक डिवीजन क्लोज करना है. ओके, एंड वी विल क्लोज दिस डिवीजन. एम्प्लॉयज को दे डिसाइडेड कि वी विल नॉट टेक अ कॉल ऑन एम्प्लॉयज. हम इन एम्प्लॉयज को क्या करेंगे, फिलहाल के लिए इनको रखेंगे एंड देन इनको दूसरे डिवीजन में शिफ्ट कर देंगे. Okay. ओके, तो हमारा टास्क था एज अ ट्रेनिंग टीम टू टेक केयर ऑफ द इंटीग्रेशन, ये स्मूथली हो जाए. जिस डिवीजन को बंद किया जा रहा था भाविन, आई विल टेल यू,
वो डिवीजन नहीं परफॉर्म कर रहा था, तो उन एम्प्लॉयज का मॉरल पहले से ही डाउन था. What was the size of the employees that you're talking about? Around 150, 200. Hmm. Okay, so they were morally very down, परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, अब डिवीजन बंद हो चुका है एंड ऑल. उनको जहाँ शिफ्ट किया जा रहा था, द अदर डिवीजन, that division people were not very happy, the managers of that division were not very happy to have these people, because एक नॉन परफॉर्मर का टैग है इनके ऊपर. तो द मैनेजर्स वर नॉट वेरी अप्रिशिएटिव. सर आप क्या, बट इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल. सो यू, when we were interacting and we were taking care of this integration, आप सोचो क्या गुजर रहा होगा हमारे ऊपर. हमारे पास बंदे हैं 200, हमको उनको एक दूसरे डिवीजन में इंटीग्रेट करना है. वहां पर ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की प्रेशर की वजह से लोग ले तो चले तो जाएंगे, बट द मैनेजर्स आर नॉट वेरी अप्रिशिएटिव, दे आर नॉट वेरी वेलकमिंग. if I quote the managers were saying us, मेरी वैकेंसी बेटर है इंस्टेड ऑफ हैविंग नॉन परफॉर्मर्स. ओके, बिकॉज कल ये परफॉर्म नहीं करेगा तो आई विल बी क्वेश्चन. सो इतना चैलेंजिंग था वो जो. एंड इट टुक अस अराउंड 5 months, 5-6 months. वो those 6 months were the most difficult 6 months of my professional career, I would say. We used to get so many, and it was not just product training. It was managerial capability building also. These managers to accept these non-performers. It was behavioral training also. It was, we had done different sessions. We had done growth mindset. Because these people have not performed for 1 year, their mindset is now at a different level. They are searching for jobs elsewhere. They are not getting. Imagine you going out in the market and telling that मैं जिस डिवीजन में काम करता था वो डिवीजन बंद हो गई, अब आप मुझे जॉब दे दो. It is very difficult to carry that tag and search for a job. So it was that difficult. Once we did this, and it took us 6 months for the integration, but when we went back and we analyzed, so those people are still there. Some of those people are still there. I am not in that organization anymore, but some of those people are still there. That division became the most profitable division of the entire company. The new division where these people went, these, because something had triggered them. Okay. Was it only training? No, it was not the only sessions that happened, but it was a complete environmental change that we brought in. So sometimes you have to look at training from a holistic point of view. एंड अगर आप इसको ब्रीफली बता पाए कि क्या चीज़ थी जो आपने प्रायोरिटी 1, 2 या 3 में किया था? So priority 1 was definitely product training. उन लोगों को नए टीम में लेकर आना है तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग था. Then we had one-on-one discussions with the managers. Then we had discussions with the managers along with the team members. And then it continued. Okay, for around 6 months. और इसमें बिहेवियरल ट्रेनिंग ग्रोथ माइंडसेट जो आपने बताया था वो क्या ये एम्प्लॉयज भी कभी कभार सेंस कर देते हैं कि एंड ये फॉलोअप है इस क्वेश्चन का कि हाँ आई हैव बीन टैग्ड एज नॉन परफॉर्मर, अब हमारे पे आप कुछ भी ट्रेनिंग भी कर लो, हाउ डज दैट मैटर्स टू अस? ऐसे ऐसे केसेस भी आए? हाँ, so unfortunately there were this kind of cases. So the people sometimes accept it. Okay, and they don't want to improve. Again, I will tell, you can only train adults में, if you go by the adults learning principle, adults only learn when they feel there is a need. हम सब ने मास्क पहनना सिर्फ कोविड में सीखा, क्योंकि जिंदा रहने के लिए उस समय मास्क पहनना जरूरी था. करेक्ट. आज जरूरत नहीं है, हम बिना मास्क के घूम रहे हैं, बिकॉज देयर इज नो नीड. सो एडल्ट्स ऐसे ही सीखते हैं, जब उनको नीड लगे तब. आप उनको सिखा नहीं सकते. तो
वो अवेयरनेस सेल्फ में होना चाहिए। जिन एम्प्लॉयज में था उन्हें ट्रेनिंग में वैल्यू मिला, उन्होंने इम्प्रूव किया, नॉन परफॉर्मर से परफॉर्मेंस की तरफ आए। ओके, जिन एम्प्लॉयज में नहीं था दे मूव्ड ऑन। Let us imagine a 25-year-old sales executive listening to this podcast and wants to be a future proof. क्या एक ऐसी चीज है जो उसे मास्टरी कर लेनी चाहिए, एक चीज जो उसका फ्यूचर सिक्योर कर सके? दिस इज एन अनसर्टन वर्ल्ड। हम फ्यूचर के बारे में वी डोंट नो हाउ थिंग्स विल बी 5 years डाउन द लाइन, बट इफ यू आस्क मी फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, एक चीज which will always, I think it will stay relevant, is if you want to make yourself future proof, you should master the art of storytelling. Okay. अब कॉर्पोरेट में इसको अलग तरीके से लिया जाएगा। स्टोरी टेलिंग इज नॉट लुक डाउन एज वेरी गुड स्किल टू हैव इन कॉर्पोरेट। अगर आपको फ्यूचर प्रूफ रहना है, बिकॉज स्टोरी टेलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल टू हैव, दे शुड बी वेरी कंपेलिंग स्टोरी टेलर। आपके आइडियाज तभी काम करेंगे जब आप यू आर एबल टू कम्युनिकेट इट टू मोर देन वन पीपल। सो दैट इज वन स्किल which I would rate top. If you ask me 1, 2, 3, then obviously adaptability will come, resilience may come. You need to be very resilient in these changing times. For a 25-year-old, finance management, वो भी एक स्किल हो सकता है which will make him future proof. So Pushkar, I wanted to understand how did you land up into learning and development? Because जब आपने शुरुआत की थी and as you told कि training was just a place to park your people. So why did you took this bold step in getting into learning and development? And how did you do that? So very interesting question. The first training session that I was attending after I got placed through college, and then when I came into the organization, so I was attending a training program, and that very day after seeing the trainer, I thought this is what I would want to do for life. And in those days, we used to have training programs for around 28 days. So you are at a training center with the training manager, staying there for 28 days. So we used to see them outside the classroom also, and they would walk to our rooms. So I said, this is one profile which I can do for my lifetime. I'll never get bored of it. Obviously, after that, I came back from the training and I got into sales and all. But this thing was there, and I loved it. Whenever I used to get chance to train anyone, new joiners in the team and all, I would be the first person to take those opportunities. And slowly, I started enjoying it. But there was one challenge that, by the time wanted to come into L&D or training team, my seniors were not very keen to take me. I was a high performer, so they didn't want to lose a high performer. Second, I was very young to be in training. So, they were not very keen. So that myth of not very experienced employee getting into training, Yes. ये तो कर नहीं पाएगा. Yeah. And they used to tell me, I have heard comments like, तुझे कौन seriously लेगा? So 2017 was the year when I transitioned into training, and I was what? At that time I was 30 years, okay? And the first training program that I walked in, there were participants who were around 38, 39. This kind of population was there. But yes, for them to take me seriously, I enrolled myself into a professional course so that that degree helps.
that gives credibility to you. Confidence builder. Yeah, it gives confidence. It gives confidence to the audience Hmm. more than me. It gave confidence to the people that okay, he's a certified trainer, so we can at least take him seriously. Was there any anxiety while you were delivering your first training program? And now when you are experienced enough, क्या difference आता है? Anxiety, Do you still feel the same thing? Same emotion? yes. Uh, Even the first training program that I took, and even today, even if it is a training program that I have taken, the topic that I have taken 10 times, 20 times, because every batch is a new batch. Okay. And every time you go in front of 25, 30 people, you are exposing yourself, and it cannot go in a structured manner. You may have the slide deck in a structured manner, but you don't know what will come from these people who Hmm. are there, these Hmm. 25 people. Okay. And the one thing that I enjoy the most is these are all young people. So, they come very raw most of the times. Uh, they can ask anything. They don't have the fear. They don't follow the corporate guidelines that ye karna hai, ye nahi karna hai and all. They just walk in. Uh, when we started 10 years back, we used to have grooming sessions where we used to tell people that you should be clean shaved. Now today, when a youngster walks in, I had to change my entire grooming session for that, because I can't tell him to be a clean shaved guy today. Hmm. So that newness is always there. You have to keep evolving, and that keeps you going. So do you design your programs according to the audience, the age? जैसे अब आपके पास there are a lot of Gen Z people, you'll have lot of mix of batch also, जहाँ पे आपके पास Gen Z भी होंगे और आपके पास old people भी होंगे. An entire course has different elements. Okay, आप ट्रेनिंग नीड्स समझ लेते हो पहले, एंड देन डिलीवरी पार्ट, द एलिमेंट दैट यू आर टेलिंग इज इट कम्स इन डिलीवरी. डिलीवरी के समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरी ऑडियंस कौन है. हाँ. सेम कंटेंट, फॉर एग्जांपल, अगर मेरी ऑडियंस मैच्योर ऑडियंस है, Hmm. if I am taking a product training for managers, I will take it slightly different. I will deliver it slightly different. I will keep it थोड़ा सीरियसनेस होगा एंड थोड़ा डीप होगा एंड और ओके लॉन्ग सेशंस होंगे एंड बट फॉर द यंगर जनरेशंस, फॉर द सेल्स रेप, Hmm. same product training will be taken in a little more funny way. Hmm. I have taken training sessions in the outside, matlab, on the lawn. Hmm. We have just walked out of the classroom, we have gone and sat on the lawn, and we have just taken training sessions without any PPT at all, because I realized, so when you are in the session, and you have to understand the vibe of the room. So if you realize कि यार अभी सुबह से there are sessions going on heavy medical, okay, and it is 5 o'clock, and then your turn comes. Hmm. Now Pushkar, you have to take a session at 5 o'clock in the evening, and you want them to listen. So what will you do? I take them outside. चलो अभी बाहर बैठेंगे, and then we will discuss, and then we will learn. And similarly, abhi, there are a lot of LMSs which have come in. तो short videos, reels, memes पे जा रहे हैं, learning content. Okay, and people are absorbing it. Ultimately, you want them to learn, and learning does not happen again. Adult learning does not happen by pushing. So you have to create the pull factor. So करना पड़ता है. We are coming to an end of the episode, and one last thing that I wanted to ask you: when you look back to your journey, what do you think, and what do you feel that as an individual, as in training professional, were you building just the training programs, or you were building people? I wanted, the first time I was sitting in a training program, and that very first day I decided that I want to be a training manager someday. Okay. And hence, if you ask me, was I building training programs? No, definitely
not only training programs. Okay, I will share one small incident with you. Okay, so I was working for a training need analysis. I had gone to do field work with one of our employees at Bangalore. Okay, and we were working in the interiors, some outstation. Okay, and we were there at the call. One guy just came in and he just asked me, "Are you Pushkar Purohit?" And I said, "Yes, but I don't remember you. Who are you and how do you know me? Because I have never met you." So that guy, he said that I had attended one of your training program during COVID. So during COVID, we were doing a lot of programs, on well-being, mental well-being, of being self-aware and all. So I had conducted mindfulness. I used to conduct this program on mindfulness. So he said I attended that program of yours, and it, on Zoom call and all. Maybe his camera may not be on, so I was not able to see, and I could not remember him also. But he was seeing me. So that day I realized that you know otherwise nobody in the interiors of Bangalore would have ever known who Pushkar Purohit is. And that guy today, so after 10 years, now when I meet, that was the first experience. After that, today when I meet people, they come and say that somebody who gets promoted silently puts a message to me, "Sir, I got promoted." Somebody who gets a better opportunity elsewhere puts a message that because of your training, I had got this. I also do coaching nowadays. So where a lot of people come and share about uh, on personal grounds also what they are gaining. So definitely I would say coaching or training for me, it is more than just delivering programs. Okay, it is my passion, you can say, and I do it with one intent of adding value. See, what are people giving to me? Anyone who comes to my training program, he okay, he may pay for the program or he may not pay for a program if it is a corporate program, but he is giving me time which he will never get back. If he attends 2 hours of my session, these 2 hours of his life I have taken, he has given me those 2 hours, so I should give him something in return. That is the only intent with which I walk into any training interventions. And that gives me a lot of satisfaction. Pushkar, thank you so much for speaking to us, having a very good discussion around learning and development as a department. आज के ज़माने में ये बहुत नेसेसिटी थी, जो डिपार्टमेंट के बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं, ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं है, उसे आपने बहुत अच्छी तरह से बाहर निकाला। सो वी थैंक यू सो मच। Thank you for having me here. थैंक यू ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। अब आपको 3 चीज़ें करनी है। 1 इज़ दैट कि आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी ऑफ आवर एपिसोड। सेकेंड, कमेंट सेक्शन में जाके आपको हमें बताना है कि आपको कौन सी इस एपिसोड की चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और कौन सी सबसे ज़्यादा गंदी, सो दैट वी कैन इम्प्रूव आवरसेल्फ। थर्ड, इस वीडियो को शेयर करें एक फ्रेंड के साथ, क्योंकि कोई एक कॉन्वर्सेशन किसी की पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। कीप वॉचिंग सोल टॉक्स विद भाविन।